کتاب الفتن مستقل احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، ترمذی شریف میں ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کتاب الفتن، یعنی آئندہ آنے والی چیزیں اور واقعات ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت پہلے ہی بیان کیا ہے۔ تو اس مجلس میں ہم کو وہی سنائے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کرنا کیا ہے، واقعات تو سنتے احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں ہم، تو اب ہمیں اس زمانے میں کیا کرنا ہوگا، کیسے ہم بچیں گے، تو وہ چیزیں بھی الحمدللہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ حضرت موصوف نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، تو اس لیے ہم بغور ان چیزوں کو سنیں اور پھر عمل پیرا ہوں۔ تو اس کے بعد مقالہ پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں مہمان دی مکرم جناب ڈاکٹر حمید نسیم رفیع آبادی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو ویسے محتاج تعارف بالکل بھی نہیں ہے، ہنر، صلاحیت، استعداد اور خدمات انسان کے لیے خود ہی باعث تعارف ہے، تاہم ہم پر ضروری یہ چیز ہے کہ ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں، چونکہ کسی انسان کے اندر، مخلوق کے اندر ہنر، مخلوق کے اندر کمال، یہ در حقیقت اس مخلوق کے خالق کا کمال ہے۔ اسی وجہ سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے لکھا اور کہا آیۃ من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کسی کی صلاحیت، کسی کی استعداد، یہ در حقیقت اللہ کا تعارف کرا رہا ہے۔ تو اس لیے مختصراً میں عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب ایک معروف اسلامی اسکالر ہیں، اور اس وقت سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے شعبہ مذہبیات میں بحیثیت ڈائریکٹر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ موصوف 40 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، 40 سے زائد کتابوں کے مصنف، فلسفہ، تقابلی مطالعہ بین المذاہب اور تصوف میں بھی ڈاکٹر صاحب کو تخصص حاصل ہے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب انگریزی زبان میں ایک تفسیر پر کام بھی کر رہے ہیں، جو ان کی ایک گراں قدر خدمت ہوگی، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ لہٰذا میں اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے محترم المقام قابل صد احترام ڈاکٹر حمید نسیم رفیع آبادی صاحب کو مدعو کر رہا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ آپ کے لیے زیادہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہت سوچان کہ انگریزی پہ پڑھوا مقال کہ اردو پہ پڑھوا، میں باسا کٲشِر پہ پڑھو، کیا شاید ساری کہ اگر سارے کٲشُر تگان تو تیل کرو کٲشِر، اگر وہ کٲشُر تگان کہ تیل کرو اردو پہ۔ ہاں اگر کوئی، اگر ایک بھی آدمی ایسا ہو جو کشمیری نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے ہم اردو میں کہیں گے، ورنہ انگریزی میں لکھیں گے بعد میں، وہ تو پڑھیں گے لوگ جب پڑھنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہت اہم ہی لیکچر ابھی ہمارے عزیز دوست شکیل شفائی صاحب نے فرمایا، اور یہ بہت ہی قابل عالم آدمی ہے ماشاءاللہ، اور محقق ہے۔ بڑی بات تو یہ تحقیق کرتے ہیں اور بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں ہمیشہ بات کرتے ہیں، جذبات سے اوپر اٹھ کے جذبے کے ساتھ۔ تو ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جذبات ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس جذبات ہے، جذبہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے وہ جذبہ آتا ہے جاتا ہے، جذبات آتے ہیں جاتے ہیں، جذبہ رہتا ہے۔ تو اسلام اصل میں جذبہ پیدا کرتا ہے، جذبات کی تہذیب کرتا ہے، اور جو قوم صرف جذباتی ہوتی ہے ان کا حال آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تو اس میں ہماری قوم بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمیں جذبات کی جو ہے تربیت، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، یہ محدود انداز میں کہہ رہا ہے تزکیہ، اور جذبات خطرناک ہوتے ہیں، جذبات کی وجہ سے برباد ہو سکتا ہے انسان۔ تو جو شیطان انسان کو نزدیک شیطانی جو ہوتا ہے وہ جذبات ہی ہوتے ہیں، جذبات کو برانگیخت کرتا ہے، اور اس وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطانی مردود سے، اور اگر اس وقت نزدیک شیطانی سے آدمی پناہ نہیں مانگی تو برباد ہو جائے گا۔
शैतान का काबू हो जाए, लेकिन मोमिन को कंट्रोल होता है अपने जज्बात। बहरसूरत मैं वो ये मौजू हमारा नहीं इस वक्त, हमारा मौजू जो है आज वो है आखिरत की निशानियाँ और हमारा तर्ज अमल। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी अरबी में एक मैंने सिलसिला शुरू किया है। अपना कुछ नहीं कहता, उलमा ने बहुत कुछ कहा, उसी को पेश करे तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत, इतना काम उलमा किराम ने किया है, असलाफ ने हमारे, अगर उसको सिर्फ हम दुनिया के सामने पेश ही करें वो भी काफ़ी है, अपना लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना काम उन लोगों ने किया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और सही फरमा रहे थे अभी शकील साहब कि पीछे आने वाले लोग अगले लोगों पर जो है नज़बिल्ला बुरा भला कहेंगे। मैं लानता नहीं कहूँगा, ये अल्फाज हमारी ज़बान से इस्तेमाल भी नहीं होनी चाहिए, तो उनका नाम एहतराम और अदब के साथ लेना चाहिए। तो उनका अल्लाह ने उनको मकबूल कर दिया, पता नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। तो वो मकबूल बारगाह है। यहाँ तक कि मैं भी गौर कर रहा था, शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह वो इब्न अरबी के बारे में कहते हैं वो मकबूल आइनी बारगाह में से है। इख्तिलाफ तो अपनी जगह पर है, और इख्तिलाफ पता है कितना ज़बरदस्त है, चूँकि हमारे पास गुलाम नबी आसिफ साहब ने तो बड़ा काम किया है वातुल वजूद और वातुल शुहूद पर, तो यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, उस पर भी कभी मजलिस हो तो अच्छा रहेगा, मुझे शौक़ है इन चीज़ों के साथ। तो बहर सूरत इसलिए उलमा ने बड़ा काम किया इस पर, तो उसी को मैं पेश करता हूँ अरबी में। तो उसमें मैं रियायतुल उलमा फ़कत, उलमा की रियायत, उलमा के लिए, और माज़रत अल्लाह रब्बिकुम, ताकि अल्लाह के पास मैं कल अपनी माज़रत पेश करूँ। उलमा को बता दिया, अब वो काम करें, हम तो नहीं कर सकते, वही कर सकते। तो उसमें मैंने एक सिलसिला शुरू किया था इशरात साल, तकरीबन 2 महीने, और जितनी भी अहादीस मतलब मुझे मिली तो उनको जमा किया मुख्तलिफ सोर्सेज से। इस वक्त आजकल मुश्किल नहीं है अहादीस को ढूंढना, ढूंढने वाले नहीं हैं, मवाद बहुत है, और जिनको चाहिए तो उनको तो मिलता है। इतना आसान बना दिया आज के साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए दीन को, बशर्ते कि हम उसका फ़ायदा उठाए। बल्लिगु अन्नी वाला आया, तो आप यहाँ पर बैठ के अभी एक आयत को टाइप कर लीजिए और पूरी दुनिया में वो पहुँच जाएगी। तो उसका फ़ायदा हम नहीं उठा रहे, हम दूसरी चीज़ों के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुनाहों की तशहीर के लिए, अल्लाह बचाए। और हम जो है अमर बिल मारूफ के लिए कम, और अमर बिल मैं कहूँगा मुनकर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको, ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी। तो बहर सूरत इसलिए मैं इसको तो, और इसके अलावा मैंने एक अपने स्टूडेंट को जो है ये टॉपिक दिया था PhD के लिए। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया इस मौजू पर, अंग्रेज़ी में किया। डॉक्टर तारिक, मौलाना तारिक साहब बहुत अच्छा काम किया, वो छप जाएगी इंशाल्लाह किताब। उन्होंने तमाम अहादीस जमा कर ली है, फिर कुरान की आयतों का की तशरीह की है, और फिर तमाम दुनिया के मज़ाहिब में क्या है, एस्कटोलॉजी जिसको कहते हैं, एंड टाइम्स के बारे में क्या होगा, और हिंदुइज़्म में क्या है, बुद्धिज़्म में क्या है, ईसाईयत में क्या है, यहूदियत में क्या है, और साइंस ने क्या कहा है, फ़लसफ़े क्या कहते हैं। तो तकरीबन 600-700 पेज की किताब माशाल्लाह तैयार की है। इसलिए मुझे इस मौजू के साथ बहुत दिलचस्पी, और जब हमारे बुज़ुर्ग हमारे बहुत ही अहम काम कर रहे हैं और इस इलाके में अच्छी जगह पर चूज़ किया है, बीच वाला रास्ता है माशाल्लाह, ये जो आपका शीरी मामूली इलाका नहीं, आप समझ सकते मैं क्या कह रहा हूँ, तो बीच वाला है, मतलब आप समझ रास्ता है। तो इसलिए इसको एक बहुत ज़रा बड़ा एक पुल बनाया जा सकता है हिदायत और तबलीग और दीन की इशाअत के लिए। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह आसिफ साहब। और ये इस गाँव में भी आदमी बहुत काम कर सकता है, और शहर वालों को गाँव आना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। पहले गाँव वाले शहर जाते थे, अब शहर वालों को गाँव आना पड़ेगा, ऐसा इंतज़ाम हो सकता है, और लोगों ने करके दिखाया, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे काफ़ी खुशी है, जब ये तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा मैं हाज़िर हो जाऊँगा, वरना मैं नहीं आता हूँ आजकल, क्योंकि इस वक्त कोरोना का दौर है, अवॉइड भी करना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं रिस्क नहीं लेना चाहिए, हालात ख़राब है। लेकिन चूँकि उनकी मोहब्बत और वो खुद तशरीफ़ लाए थे, मुझसे रहा नहीं कि मैं आया, वरना मैं 7 महीने के बाद बारामूला आया हूँ श्रीनगर से, हालांकि मेरा घर दोबगढ़ में है। तो बहर सूरत ये तो कुछ तमहीदी बातें थी। तो मैंने इस मकाले में, जो मैं बाद में छप जाएगा इंशाल्लाह, इस वक्त तो मैं सिर्फ खुलासा पेश करूँगा, मैंने ये कोशिश की है कि जो दुनिया परस्ती है उसके बारे में रसूलुल्लाह ने जो फरमाया है बातें, इस वक्त असल में हमारे पास दुनिया परस्ती आई है। और दुनिया परस्ती कैसे आती है उसके बारे में रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, कुछ अहादीस का मैंने लिया है और कुरान की आयत, तो उसकी रोशनी में मैं आपसे कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमको कहा गया कि आप जो है दज्जाल के फितने से बचने के लिए जो है सूरह कहफ की तिलावत क्या करें कम अज़ कम जुमा को। हदीस में तो ये भी आया कि पूरा भी पढ़ सकते हैं, और पहली जो आयतें हैं वो 10 आयतें पढ़ सकते हैं। तो मैं गौर कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात में हिकमत के अलावा कुछ है ही नहीं, तज़किया के अलावा कुछ है ही नहीं, इल्म के अलावा कुछ है ही नहीं।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی طرف سے ہی سب چیزیں ہوتی ہیں، تو حکم تو اللہ کا ہی ہوتا ہے. تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو اللہ ہی کا قول ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی صورت ہو اس کی، چاہے وہ جلی ہو یا خفی ہو، تو بہر جو بھی اطلاع مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو، تو یہ میرا بلیف ہے. اور دیکھو میں فلسفے کا طالب علم ہوں، لیکن اس معاملے میں حدیث کے معاملے میں صحیح حدیث ثابت ہو گئی تو پھر کوئی دوسری بات نہیں. اذا سال حدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح ثابت ہونی چاہیے، اس کے بعد کوئی بات نہیں، کوئی کیل قال نہیں اس کے بعد، کیونکہ وہ شارع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد کسی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا فلسفی دنیا کا ہو، کتنا بڑا غامدی ہو، اور پتہ نہیں کون کون لوگ جو اس وقت حدیث کے انکار کر رہے ہیں اور حدیث کے بارے میں لوگ یہ دل میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. اور یہ حدیث پڑھیے آپ، حدیث کی زبان دیکھیے آپ، کأن النبی یتکلم فی، یعنی آپ دیکھیے کہ بخاری شریف کو دیکھیے جیسے نبی کے اسم خطاب فرما رہے ہیں، اور جس گھر میں بخاری ہو اس میں نبی کے اسم کا قول ہے، جیسے کلام فرما رہے ہو نبی کے، اور جس گھر میں اللہ کا کلام ہو، قرآن ہو، اللہ کا نام فرما رہے ہیں، احساس ہو جائے تو نیندیں حرام ہو جائیں گی. کیا میرے گھر میں اللہ کا کلام، پھر کیا حالت ہوگی ہماری؟ پھر تو بس اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن چونکہ ہمیں تو قرآن کی زبان ہی پتہ نہیں. فلسفہ میں نے بہت پڑھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے، برٹن رسل کو پڑھا ہے، مارکس کو پڑھا ہے، ہیگل کو پڑھا ہے، اور مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہے وہ حدیث کے معاملے میں. قرآن کا تو سوال ہی نہیں، قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہزاروں کتابیں لائیے اور ایک قرآن کی آیت بھاری پڑے گی اور اس سے بھی بڑے، اس کا تو تشریح نہیں کر سکتے ہم لوگ. خزانہ ہے علم کا. لیکن جاہلوں کے لیے کیا ہے؟ یعملون ہے نا، وہ جیسے وہ کھاتے نا کہ جیسے وہ کہ بالکل اسفارا، وما یحملون اسفارا، جیسے کہ گدھوں پر جو ہے بوجھ ڈالے گئے ہیں. حال ملت کا اس وقت یہی ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حرف ہے ترہس ہر کرانز. اگر ایک ہی حرف ہم نے قرآن کا سمجھا ہوتا تو ہمارا موٹاپا جو ہے دبلے پن میں تبدیل ہو گیا ہوتا، روتے روتے قرآن پڑھا کونو مولک قرآن پڑھا گئے نسور، یہ حالت ہوتا ہے. لیکن قرآن کا ہمارے پاس مقام تو وہ ہے ہی نہیں، جو اقبال سے کہو نا، زمین کیا آسمان بھی تیری بے نوری پہ روتی ہے، کہ سر چھتر قرآن کو چلے پاک کر دیا تو نے. اللہ کا قرآن کلام ہے بھائی، اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. یقین تو ہو، آج بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، لیکن یقین کی بات ہے نا. تو ایسے نبی کے رسول کی بات جو آپ نے فرمایا وہ صحیح ہو کر رہے گا، صحیح ہو کر رہا ہے اور آگے بھی صحیح ہو کر. تو سب سے پہلے قرآن کی جو فرمایا کہ آپ جو ہے سورہ قحف پڑھا کریں جمعہ کے دن، دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے. اور علمیہ اللہ مغفرت فرمائے ابوالحسن ندوی صاحب، ایک بار میں ملا ہوں، پھر کبھی ملنے کی ضرورت نہیں پڑی. حالانکہ کتنی بار علی گڑھ آئے، کتنی بار کشمیر آئے، نہیں ملا. انہیں ایک نصیحت کی، بیٹے اپنے دین کا کام اللہ ایک فاجر اور فاسق سے بھی لے سکتا ہے، کام کی بات مت کرو، اخلاص کی بات کرو. میں نے کہا مولانا اب قیامت تک آپ سے نہیں ملوں گا، آپ نے وہ بات کہی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ علماء ایسے ہوتے نا. باقی تو واعظ خان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، عالم ہوتا ہے، اور میرے خیال میں عالم واعظ خان زیادہ نہیں ہوتے، وہ عالم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں واعظ خان زیادہ ہے، اور جو عالم بھی ہیں وہ بھی واعظ خان بن گئے. اور خوشی ہوتی ہے کہ ان حالات میں ہمارے غلام نبی آصف صاحب نے ایک علمی مجلس کا، جہاں پر صرف تقریری مجلسیں ہوتی ہیں، علمی مجلس ہو گئی. اور مقالہ جو ابھی پہلے پڑھا گیا ماشاءاللہ علمی مقالات، اور بہت ہی دلائل کے ساتھ. یہی چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے قوم میں. ہمارے اندر جذبات ہے، میں نے کہا نا، جذبہ پیدا ہوتا ہے علم سے، جذبات پیدا ہوتے ہیں تقریروں سے. فَبِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی چیز وہ زمین پہ قائم رہتی ہے، اور وہ تعلیم ہوتی ہے، وہ تقریر نہیں ہوتی ہے. اور تقریر کو میں کہتا ہوں طوفان اور سیلاب کی طرح وہ بربادی کرتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، مقرر نہیں تھے، خطیب نہیں تھے. حالانکہ خطاب اتنا اچھا کرتے تھے کہ اوتیت جوامع القلم، وہ اپنا ہے، لیکن تعلیمی انداز تھا. اور جن قوموں میں تعلیمی انداز پیدا ہو گیا وہ ترقی کرتے. اور ویسٹ میں دیکھیں آپ، وہ بھی لکھتے کتنا علمی انداز ہے، تعلیمی انداز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ، اس پہ میں کوئی اور بات کروں گا، یہاں موقع نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ضمن کچھ بات پھیل جاتی ہے، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کروں گا گزارش غلام نبی صاحب سے کہ جن لوگوں نے آج مقالات یہاں پڑھے،
उनको आप अलग अलग से सिर्फ एक, उनमें से एक आदमी को सिर्फ एक मजलिस के लिए कभी बुलाए, बस एक आदमी, ज़्यादा नहीं। ये जो 50-60 लोग तकरीर करते हैं, फिर कोई चीज़ वाज़ह नहीं होती, 50 लोगों की बातें सुनते हैं, 50 ख़यालात बनते हैं, आदमी परेशान हो जाते हैं। शुद्ध परेशान ख्वाब मन अज़ कसरत ताबीरा। मैं भी तकरीर कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, अब 50 तकरीरें हमने सुन ली, कितना याद रहेगा? छोटे बच्चे हैं बेचारे, क्या एक आदमी को बुलाओ और उससे सवाल पूछो, एक ही उसको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, वरना ना उसको फ़ायदा होता है ना आपको होता है। वो बेचारा घुट के रह जाता है, वो बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है। जब हमें हर चीज़ की तकरीर सुनने के लिए टाइम है तो दीन की बातें सुनने के लिए टाइम क्यों नहीं? अगर अल्लाह ने किसी में सलाहियत पैदा की है, वो अच्छा मकाला लिखता है, उसको मकाला पढ़ने दीजिए पूरा, सवालत कीजिए। मैं इंडोनेशिया जाता हूँ, वहाँ पर 1-2 घंटे मेरी लेक्चर होती है, उसके बाद सवाल जवाब होता है, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। वरना एक ही आदमी, फिर दूसरा आदमी, फिर तीसरा आदमी, अभी 10 मिनट रह जाए भाई, सिर्फ बोले भाई एक लोग बंद कर लो, आप बेचारा घुट के रह जाता है उसकी बात दिल में। तो ये कर सकते हैं आप, अच्छी तरह से ना, मतलब मैं इन तजु दे रहा हूँ। तो बहर अब मैं इस पर अपने मौजूद पे आ रहा हूँ। तो मैं ये कहता कि नबी करीम ने फरमाया, यो शौक़ खैर माल रजल गनमी यतबअ बिहा शुअबुल जबल व मवाक़िउल मतर यफ़िरु बिदीनिही मिनल फितन औ कमा क़ाल। हालांकि ये हदीस सही है, मैं औकमा काल करता हूँ, ज़रा एहतियात करता हूँ, मैं हदीस के मामले में बड़ा एहतियात करता हूँ, कोई चीज़ मनसूब ना हो जाए, क्योंकि बड़ी वईद आई है। और यहाँ पर तो हदीस के मामले में किसी चीज़ को भी लोग हदीस कहते हैं। एक बार एक मैडम ने कहा, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, ये कुरान है। मैंने कहा मैडम ये हदीस भी नहीं है। इतना लोगों ने समझ लिया हदीस इतना आसान है। भाई हदीस के लिए इतना काम मुहद्दिसीन किराम ने किया है, दुनिया में किसी ने नहीं किया है। मैं दावे के साथ बात करता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता। मैं अमेरिका में भी ये बात करूँगा, यहाँ भी करूँगा ये बात, और वहाँ बड़े बड़े लोगों के सामने मैं बात करूँगा। ये इल्मी अंदाज़ की बात कर रहे हैं। जितना काम मुहद्दिसीन किराम ने हदीस की हिफाजत के लिए किया, किसी ने नहीं किया है। तो लेकिन यहाँ हर चीज़ को लोग हदीस कहते हैं, किसी की बात को भी, किसी के कौल को भी हदीस कहते हैं। मौलाना रूमी की किसी शेर को भी लोग हदीस कहते हैं। तो ये कहावत को भी लोग हदीस कहते हैं, अफसोसनाक। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और लोगों को गुमराह करते हैं इस तरह से। और इसलिए मैं एहतियात करता हूँ। तो रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत का बेहतरीन माल वो होगा जिसको लेके एक आदमी चला जाएगा बारिश के जगहों पर, और जहाँ पर थोड़ा सा छोटे छोटे वो, मतलब समझ लीजिए कि आप एक लिहाज से घाटियों में जाएगा, पहाड़ों की घाटियों में जाएगा, अपने दीन को फितने से बचाने के लिए। अब इस हदीस से मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, ये हमारे सूफिया किराम जो है ना, ये क्यों भाग गए इस दुनिया से? ये रहबानियत नहीं थी, ये फितनों से फरार था। और हज़रत आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु अन्हा, यफ़िरु अहदुहु बिदीनिही अन युफ़्तन बिही। हर आदमी हिजरत इसलिए कर रहा था ताकि फितने में न पड़े। पहले लोग मक्का से मदीना जा रहे थे फितने से बचने के लिए। आजकल वो हालात भी आएंगे जब लोग बस्तियों से जंगलों की तरफ जाएंगे फितने से बचने के लिए। और अल्लामा इकबाल का शेर है, दुनिया ये दूँ की कब तक गुलामी, या राहिबी कर या पातशाही, राहिबी कर। तो ये जो लोग कहते कभी हर चीज़ को भाई हर का राहिब करार देते हैं। मुझे याद है, अल्लाह मगफिरत फरमाए कौसर साहब को, कौसर बांडीपोरा के जो है अफगानी। मैंने उनको देखा एक बार सोपुर जलसे में जब मैं छोटा था, उसके बाद चले गए। फिर मैंने वहाँ भी उनको देखा जहाँ पर वो बैठे थे, वहाँ पर बांडीपोरा में। तो फिर वो जलसों में नहीं आते थे। कितना फितना पैदा होता है जलसों से, अगर सही मायने में इस्तेमाल न किए जाएँ। हमारे जलसों में क्या होता है, एक दूसरे की पगड़ी उछालना, हुक्म कुफर देना, मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करना, बुनियादी बातें पता नहीं दीन के लिए, मसलक पर बहसें हो रही है। भाई वज़ू पता नहीं, गुस्ल पता नहीं, अब मसलक में बातें करो, वो गलत है। अरे नमाज तो पढ़ रहा है ना, किन चक्रों में पढ़े हो तुम? दुनिया तुमको ख़त्म करने के लिए तुली हुई है और तुम बहसें कर रहे हो कि वो ये है, ये है, वो है, और इसको दीन समझते हैं लोग। अफसोस का मकाम ये है, जबकि ये इज्तिहाद है राजा और अर्जा बकौल अनवर शेख कश्मीर रहमतुल्लाह, अर्जा और राजा का मसला है ज़्यादा से ज़्यादा है। और वो भी उलमा का काम है। हम लोग कौन होते भाई? वो लोग बैठे फैसला करें जब, और उसे फैसला अगर नबी करे तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो इससे फ़ायदा ही होता है। कभी कभी कोई आदमी पहले नमाज़ पढ़ता है तो अच्छा है, उसके बाद दूसरी मस्जिद में थोड़ा देर में पढ़ते, तो उसको अगर किसी की नमाज कज़ा देर हो गई वो पढ़ेगा। किसी को ये तो दीन की सहूलियत की है। तो जब हदीस साबित हो गई तो फिर बहस करने की क्या ज़रूरत है? अब इन चक्रों में पढ़ना कि भाई मेरी हदीस ज़्यादा सही है, आपकी कमज़ोर है। भाई कमज़ोर सही तो हदीस तो है ना, साबित तो है ना, उलमा ने फैसला किया है ना, वरना ये एक ही मसलक होता फिर इतने सारे मसलक क्यों होते, है ना? तो ये अफसोसनाक है। तो ये दीन को फितनों से बचाने के लिए आदमी जाएगा। मैं इस तरफ जा रहा हूँ। और फिर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए नबी के पास,
ईमान के बारे में पूछा, इस्लाम के बारे में पूछा, फिर जो एहसान के बारे में पूछा, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। और फरमाया कि आखिरत के बारे में बताइए आप, आखिरी ज़माने के बारे में। तो नबी के फरमाया कि वो ज़माना आएगा कि जब एक लौंडी जो अपने सरदार को पैदा करेगी, जन्म देगी, और तरल खुफातुल उरातुल आलत शाय यततावलना फिल बुनियान, वो लोग जो नंगे पैर नंगे बदन थे उनको आप देखोगे कि बड़ी बड़ी इमारतों में फ़ख्र से वो फ़ख्र करते होंगे कि हम बड़े सरमायादार लोग हैं। हालांकि उससे पहले क्या थे, वो बकरियाँ चराने वाले, ऊँट चराने वाले नहीं। अब अरब में ऊँट चराने वालों की इज़्ज़त होती थी, ऊँट की कीमत भी होती थी, और ख़ास तौर से सुर्ख ऊँट को पता है वो। लेकिन बकरियाँ चराने वालों को हकीर और फ़कीर समझा जाता था। लेकिन हकीर और फकीर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो है बहुत फ़ख्र से जो है फ़ख्र करते होंगे। मालूम हुआ कि माल दौलत की बड़ी कसरत हो जाएगी और लोग भूल जाएंगे उनकी हालत क्या थी पहले, और दुनिया परस्ती में इतने मशगूल हो जाएंगे कि यही फ़ख्र और मबाहत का ज़रिया बनेगा। क्या तकवा नहीं बनेगा, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फ़ख्र का ज़रिया क्या बनेगा, दौलत, तकासुर फिल अम्वाल वो जो है औलाद। तो औलाद में कसरत और पैसे में कसरत, ये एक बनेगा, ये आखिरत की निशानी में से। हालांकि नबी कृष्ण ने फरमाया कि जो सुनने वाला है सुनाने वाले से ज़्यादा खबरदार नहीं है। सवाल करने वाला सवाल सुनने जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा इस मामले में खबरदार, क्योंकि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। हम लोग ईमान की बुनियाद पर उनको समझ सकते। फ़लसफ़ा से ये बातें समझ में नहीं आएगी, मैं बताऊँ आपको, साइंस से नहीं, ये ईमान की बातें, और वाकई ये ईमान की बात है। जिब्रील अलैहिस्सलाम पर ईमान की वजह से हम ईमान की वजह से उनको मानते हैं। कोई कहेगा, अब सर सैयद ने ज़रा तहकीक की थी तो उसने फिर उसका इनकार ही कर दिया, कहा कि नेचुरल कवानीन है, और जरासीम कह दिया, नौज़ुबिल्लाह जिन्नों को। आप बताइए माइक्रोब्स वगैरह, तो बड़ा अजीब सा लगता है। सर सैयद का अपना एहतराम अपनी जगह पर है, लेकिन जब आप अक्ल से उन चीज़ों को समझ, जैसे इमाम गज़ाली ने फरमाया, हर चीज़ को तोलने का अपना पैमाना होता है, और अल्लाह की बातों को तोलने का पैमाना अल्लाह की किताब है, और कोई चीज़ नहीं है। मैं फ़लसफ़े से बड़ी बातें करता हूँ एथीस्ट के साथ। अगर आप फेसबुक पे देखते होंगे तो बड़े बड़े जो माशाल्लाह एथीस्ट है दुनिया के इस वक्त, उनके साथ हम बहस करते हैं कि भाई तुम्हारी अकल नहीं कितनी है भाई। ये अकल में जो बात आती है वो तो हवास से आती है। हवास में क्या आता है जो आपके सामने है, हवास के बाहर क्या वो तो पता ही नहीं आप, है ना। तो ये जो वो है जो है उससे ऊपर चीज़ है, और उससे पहले विजदान आता है, इल्हाम आता है। इल्हाम आपके समझ नहीं आएगा तो आपको तो वसवसा आता है शैतान का, आपको इल्हाम तो आता ही नहीं, आपने वो अमल ही नहीं किए ताकि फरिश्ते आप पर इल्हाम डालें। इल्हाम तो फरिश्तों से आता है ना, और वसवसा शैतान से आता है। आप शैतान के काम करते हैं तो वो आपके पास अपना वसवसा डालते रहते हैं, तो इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। जैसे फ्रांस के लोगों ने बदबख्तूनी की है, तो उनके पास पाकीज़गी तो कोई चीज़ है नहीं, तो इसलिए गंदी बातें निकलती हैं उनकी। शैतान को जो वही करता है, जो वही भी कुरान का लफ्ज़ में आया है, भारत में यहाँ पर जो भी उनको वसवसा देता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि नबी कैसे फरमाया कि जो लोग बहुत ही गरीब थे, पसमानदा थे, बकरियाँ चराने वाले थे, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बहुत ही फ़ख्र से मतलब घूमते होंगे, इतराते होंगे। उसके बाद एक रसूल ने हदीस फरमाई आखिरी ज़माने के बारे में, युशकुल उम्म अन तदा अलैकुम कमा तदा अलअकलता अला कासातिहा। अनकरीब दुनिया की कौमें एक दूसरे को दावत देंगी जैसे खाने वाले दावत देते हैं, दस्तरखान पर दूसरे लोगों को खाने के लिए दावत देते हैं। और कसा वो बर्तन होता है जिसमें बढ़ चुका हो, उसमें बहुत गुंजाइश हो, बहुत लोग खा सकते हैं। मुसलमानों का ये हाल हो जाएगा कि दुनिया की कौमें एक दूसरे को दावत देंगे, आ जाओ, उनको खा जाएंगे, ख़त्म करेंगे, बर्बाद करेंगे, उनके तेल पे कब्ज़ा करेंगे, उनके वसाइल पर कब्ज़ा करेंगे, उनके दरियाओं पर कब्ज़ा करेंगे, उनके समंदरों पर कब्ज़ा करेंगे, उनके फ़िज़ाओं पर कर दिया है। और जो चाहते हैं हमसे कहलवाते हैं, इसराइल को कबूल करो। करवाते नहीं हैं। किस चीज़ का इंतज़ार करें? हर चीज़ साबित हो रही है। जो आखिरत की निशानी के बारे में दोस्तों ने फरमाया, सब साबित हो रहा है। वो कौम जो एक ज़माने में बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, हमने दश्त तो दश्त है सहरा भी न छोड़े,
وہ قوم اب جو ہے ان کے اوپر تمام دنیا کی قومیں حملہ کر رہی ہیں. میں حدیثوں کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, اور مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں, یہ حدیث ہے, میں سیاست میں کوئی دلچسپی, مطلب میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. جنرل آپ دیکھیے مسلمانوں کی حال پوری دنیا میں آپ دیکھیے, چاہے عرب و عجم میں دیکھیے آپ, تو رسول نے جو باتیں فرمائی آخرت کے بارے میں, آخری زمانے کے بارے میں, وہ آج کل ثابت ہو رہی ہے. اور اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کیا کہ اس نے فرمایا کہ ایسے تمہارے اوپر دنیا کی قومیں مطلب ایک دوسرے کو دعوت دیں گے حملہ کرنے کے لیے, جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, ایک دوسرے کو بلائیں گے. تو صحابہ نے عرض کیا, اب صحابہ سوال پوچھتے تھے, ہم لوگ دین کے معاملے میں سوال نہیں پوچھتے, دنیا کے معاملے میں سوال پوچھتے. اپنے بچے کو جو ہے ٹیوشن پڑھائیں گے اور ٹیچر سے 50 سوال کرے گا, ٹیچر والدین بھی کریں گے اور بچے بھی کریں گے, لیکن دین کے معاملے میں کوئی کچھ بھی کہے کوئی سوال نہیں کرتا ہے. مسجد میں آپ دین پہ کسی کو سوال نہیں, اگر کوئی موضوع حدیث بیان کرے گا آپ پوچھ نہیں سکتے, کیونکہ دین کے معاملے میں ہم لوگ بہت ہی جذباتی ہیں, مطلب وہ سیریس نہیں ہے, اور جو کچھ کہتا ہے اس کو سنتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے فرمایا تو صحابہ نے, ایک صحابی نے سوال پوچھا, یا رسول اللہ یہ حال اس لیے ہوگا ہمارے اوپر کہ ہم کم ہوں گے, وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, یا کہ ہم کم ہوں گے. فرمایا بل انتم یومئذ کثیر, نہیں تم اس زمانے میں بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے. وَلَكِنَّكُمْ غَثَاءً كَغَثَاءِ السَّيْلِ, آپ لوگوں کا حال وہ ہوگا جو ایک سمندر کے جاگ کا ہوگا. وَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِكُمْ عُدُوَّكُمُ الْمَحَابَةَ, تمہارے دلوں میں سے اللہ جو ہے تمہارے دشمنوں کی خوف کو نکال دے گا. وَيَقْذَفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور تمہارے دلوں میں اللہ جو ہے وہن ڈال دے گا. اب صحابہ پوچھنے لگے, حالانکہ وہ جانتے تھے وہن کا مطلب کیا ہوتا ہے, عرب کے لوگ, ہم لوگ پوچھے تو سمجھ میں آ سکتا ہے, اور نبی کے رسول کے سمجھے صحابہ تھے وہ تو عربی جانتے تھے ماشاء, بہت عالم تھے, وہ بھی پوچھ رہے سوال, اور سوال پوچھنے میں کبھی حرج نہیں کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں جب تک مسلمان سوال کرتے رہے, ترقی کرتے رہے, تحقیق کرتے رہے, علمی میدان میں آگے بڑھے. امام غزالی نے تنقید کی ابن سینا پر, الفارابی پر, امام غزالی پر تنقید کی ابن رشد نے, اور ان سب پر تنقید کی ابن تیمیہ نے, اور اس طرح سے آپس میں علماء کا ایک مذاکرہ ڈسکشن چلتا تھا. احترام اپنی جگہ پر, جیسے ارسطو نے کہا دیر از پلیٹو بٹ دیر از ٹروتھ. مجھے بہت پیارا اپنا استاد افلاطون ہے, لیکن افلاطون سے پیاری صداقت ہے. اگر میرا استاد بھی غلط کہے گا تو میں وہ بات, احترام اپنی جگہ پر. ہم احترام کے چکر میں جو ہے ہم جو ہے تساہل کرتے ہیں, مداحنت کرتے ہیں, بات نہیں پوچھتے, سوال نہیں پوچھتے. اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا سوال پوچھتے تھے, اور صحابہ انتظار کرتے تھے کوئی ایسا آدمی آئے جو کہ دیہاتی قسم کا ہو, زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو, وہ ذرا کھل کے سوال کرے گا, کیونکہ پڑھا لکھا آدمی سوچتا ہے, مثلا مجھے پتا ہے غلام نبی صاحب کیا ہے, اب میں ان سے بات کرنے میں ذرا احتیاط کروں گا, ان کا علمی ایک مرتبہ ہے, یا ایسے ہی مطلب شکیل صاحب باقی لوگ, ایک عام بچہ آئے گا وہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے. تو صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے اس دن جب کوئی ایسا دیہات یا کوئی بیچارہ سیدھا سادہ آدمی آیا اور اس نے ایسے سوال پوچھ دیا, اور صحابہ کو بہت معلومات حاصل ہو جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور وضاحت فرما دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا معلم تھے, وہ معلم, اور معلم تب تک نہیں بولتا ہے جب تک آپ میں طلب بھی نہ ہو. اور ہم جو ہر جگہ بولتے ہیں اسے بڑا نقصان ہوا. ہمیں طلب والوں کو بتانا چاہیے, تیار کرنا چاہیے, نہ کہ ان لوگوں پر واز کرنا چاہیے جو واز برائے واز سنتے ہیں اور ان کو عادت ہو گئی واز سننے کی. عمل کرنے کے لیے اگر عمل ہوا ہوتا آج تک تو یہ حالت ہماری نہیں ہوتی. اگر ہمارے واز کا مطلب صرف سمجھنا ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک رسم بن چکی ہے واز کھانی. کیسا بولتا ہے, ارے صاحب بہت اچھا لیکچر دیا, کیسا کیا کہا, لیکچر دیا جناب, واز پڑھا, کہا کیا واز پڑھا, بھائی پڑھا کیا یہ تو پتہ نہیں ہوتا کسی کو. آپ آدھے گھنٹے کے بعد کسی کو پوچھے کیسا کیا بولا, اس کے برعکس آپ 1300 سال 1400 سال کے بعد بھی رسول کی بات کو انہی الفاظ میں سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, کیونکہ وہ عالمانہ انداز تھا, علمی انداز تھا, تعلیمی انداز تھا. اور ہمارا انداز جو ہے تقریری انداز ہے, اور تقریری انداز سے جو ہے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے, جذبات میں صرف ارتعاش پیدا ہوتا ہے. بس میں ختم کر رہا ہوں. تو یہ ایک حدیث ہے. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑا جائے گا ایک ریوڑ پر بکریوں کے, اس سے اتنا نقصان بے افسد اللہ من حرص المرء علی المال و شرف دینہا, یعنی اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑا جائے گا ایک ریوڑ پر بکریوں کے, اتنا نقصان ریوڑ کو نہیں ہوگا جتنا کسی انسان کے مال کی حرص
लालच और शरफ की लालच। इस वक्त लड़ाई किस बात की है कि मेरा चलना चाहिए, मेरा मसलक, मेरा आलिम, मेरी तंजीम, मेरा झंडा, और ये पूरी मस्जिद तक को हमने इसमें बांट दिया है, उलमा तक को बांट दिया हमने। हर आदमी चाहता है कि बस मुझे माल मिल जाए, और माल के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए मर्द औरतें सब तैयार है। आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर शरफ, आदमी चाहता है मुझे शरफ मिले, इज़्ज़त मिले, मेरा वक़ार हो, मेरी रियासत हो, मेरी बात सब लोग माने, मेरा झंडा। यहाँ तक कि मस्जिदों में भी गैर अल्लाह के नारे लगते हैं, और रब्बो का फ़क़ब्बिर के नारे कम लगते हैं, दूसरों के नारे ज़्यादा लगते हैं। अफसोस का मकाम है, हालांकि मस्जिद में तो नारे लगने ही नहीं चाहिए। अब अगर लगते, मतलब मैं कहता हूँ अगर तो खुदा की तकबीर होनी चाहिए वहाँ। तो ये हदीस में कहा गया कि नुकसान होगा, तो ये आज का हो रहा है। और इस तरह से उसने फरमाया कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लल फ़क्र अख्शा अलैकुम, मैं आपके ऊपर इस चीज़ का गम, मुझे परेशानी नहीं है, गम नहीं है कि आप गरीब हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अन तुबसित अलैकुम दुनिया, मुझे परेशानी इस बात की है कि आप लोगों पे दुनिया के दरवाजे खोल दिए जाए, कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम, और जैसे पहले लोगों पर खोले गए थे, उसके बाद तुम भी एक दूसरे के साथ मुकाबला करो दुनियावी मामला थे, और उसी तरह से हलाक हो जाओ जैसे वो हलाक। और इस वक्त वही हो रहा है कि दुनिया के मामला में जो हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, और दुनिया की, और जो इकबाल ने फरमाया ना, सबब कुछ और है तू उसे खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं। मुसलमान इसलिए पसमानदा नहीं हो गए कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा इतना है मुसलमानों के पास, तेल इतना है, लेकिन दीन नहीं है। और दुनिया में मुकाबला है, दीन में मुकाबला वो ना कि कहा था अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आप जन्नत के लिए दौड़ो, सारी जन्नत वल मगफरत, यानी आप दौड़ो, उसके लिए नहीं दौड़ते हैं, साबिक़ू बिल खैरात, दुनिया में दौड़, तकासुर फिल अम्वाल, तो दुनिया के मामला अल्हाकुम तकासुर, इतना बिजी रखा है दुनिया में एक दूसरे को आगे बढ़ने में कि ये मामला हो रहा है। और फिर उसने फरमाया इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व इन्ना फितनती उम्मती अलमाल, सबको उम्मत का एक एक फितना था, और मेरी उम्मत का फितना जो है माल है। ये पेशन गोई है, और ये पूरी हो रही है। आज देखिए पैसे के लिए क्या क्या लोग करते हैं, और कितना दीन भी आदमी को चला जाता है। और फिर हज़रत अहमद बिन हम्बल ने फरमाया इब्तलैना बिज़राई फसबरना व इब्तलैना बिस्सराई फलम नस्बिर, हमें सख्तियों से आजमाया गया तो हमने सब्र किया, लेकिन जब आसाशें आ गई तो सब्र नहीं कर पाए। और आखिरी एक हदीस में और अर्ज़ कर जाऊँ, हदीस खुद ब खुद वजाहत करती है, उसमें वजाहत करने की ज़रूरत, अब जब हम वजाहतें करते हैं प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें हम अपना मसलक, अपनी पसंद वो लाते हैं, और फिर हमारा भी ब्लड हो जाता है व्यू। हदीस खुद ब खुद बयान करते हैं, आप कुरान को समझ के पढ़ो, आपको कुरान ले जाएगा अपने मंजिल तक, चाहे आप इकबाल हो या आपने किसी दारुल में न पढ़ा हो, इकबाल की तरह आप कुरान को समझेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ तफसीर है वो सिर्फ, उसमें तो उलझ है। कुरान तो डायरेक्ट आपके दिल से खिताब करता है, बशर्ते कि आप अरबी इतनी जानते हो और उस इस्लाम के बुनियादी उलूम से भी आपकी वाक़फ़ियत हो। तो हदीस खुद में उसमें वजाहत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लोगों ने बड़ी वजाहतें की है, उस वजाहत में शुद्ध परेशान ख्वाब मंद अस कसरत ताबीर, हाँ ताबीरें इतनी हो गई कि पता नहीं लगता कहना क्या चाहता था इंसान। तो लौकान अली इब्न आदम वादियानी मिन माल लबतगी सालिसन वला यमला जौफ़ी इब्न आदम इला तुराब, रसूल फरमाया कि अगर इंसान के पास माल से भरी हुई 2 वादियाँ हों, वो तीसरी चाहेगा और उसके पेट को सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर देगी। तो ये सब चीज़ें। और उसके बाद फिर लास्ट वाली हदीस, तो रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना वो आएगा ला युबालिल मरियम बिमा अखज़ल माल मिन हलाल और मिन हराम। एक ज़माना मेरी उम्मत पर वो आएगा कि जब एक आदमी, ये परेशानी इसको नहीं होगी कि माल उसने हलाल से कमाया, हराम से कहाँ कमाएगा, उसकी परेशानी नहीं होगी। तो ये सब जो है माल और दुनिया की हिर्स और हवस के लिए जो अहादीस रसूल ने फरमाए हैं वो सब पूरे हो रहे हैं। और हमें थोड़ा इसलिए वापस जाना पड़ेगा कुरान की तरफ, हदीस की तरफ, ताकि सहाबा की ज़िंदगी की तरफ। इस पर मैं ख़त्म करता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है कि तुर्की के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनका नाम था बदिउज़्ज़मान नूरसी। उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में इज्तिहाद को हम क्यों नहीं तस्लीम करते। उसने कहा कि जिन लोगों ने पहले इज्तिहाद किया था आइमा अरबा फर्ज़ा, उनका मतमय नज़र आखिरत थी, और आज की जो जनरेशन है ना, उनका मतमय नज़र दुनिया है, वर्ल्डलीनेस। इसलिए हम अगर आज इज्तिहाद करते भी उसमें कोई ना कोई दुनिया का उन्सर होता है, आखिरत का कम होता है। तो इसलिए उनका इज्तिहाद अल्लाह के रज़ा के लिए था, आज जो हम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई दुनिया की गरज
होती है तो ये वाकई प्रॉब्लम ये हो गया कि हम इतने तो हमारा अप्रोच वर्ल्ड ओरिएंटेड है और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुनियाद ही दजालियत है और दजालियत का आगाज़ तो वहीं से हो रहा है जैसे कि नदवी साहब ने अपनी ईमान और जाहिलियत की मार का ईमान और जाहिलियत जिसमें ने फरमाया मादियत तो उसमें फरमाया और ऐसे जो है हमारे मंज़र हसन गिलानी साहब ने जो सूरह कहफ की शरह की है और बाकी उलमा किराम ने की है। तो दजाल की तहज़ीब का आगाज़ तो मगरबी तहज़ीब से हो रहा है और मैं ये सोच समझ के कह रहा हूँ, मैं पता है उनकी फ़िलासफ़ी क्या है, मुझे पता है, बाकी लोग कहेंगे मुझे पता है और ये वही से और हमारे अंदर भी ये सब चीज़ें आ गई, उन्होंने डाल दिया हमारे अंदर वो दुनिया परस्ती का एक जुनून यहूदियों से ये आया है कि वो बहुत ज़्यादा दुनिया परस्त थे और उनमें से हर आदमी चाहता था कि 1000 साल ज़िंदा रहे तो लेकिन दुनिया परस्ती का जुनून इतना था कि वो कहते थे लैसा अलैना फिलोमिना सबील, तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, सूद खाते हैं या सूद कुछ भी खाते हैं और सूद उनने आम किया रोथ चाइल्ड्स और अब कोई घर ऐसा नहीं आज जहाँ पर सूद नहीं आ गया है, ये सब यहूदियों की कारस्तानी है और मुसलमान अपने मुल्कों में भी गैर सूदी बैंकारी कायम न कर सके तो ये दुनिया परस्ती का जुनून हमारे अंदर पैदा कर दिया और हम सब लोग दुनिया के पीछे पड़े हो और दुनिया के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ में आखिरत का कोई ख्याल, तो इन तमाम पेशन को जो रसूल ने फरमाया था ये सब पूरी हो रही तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि वही रिटर्न करें, हम वापस जाए हम कुरान हदीस की तरफ। और जैसे हज़रत मालिक ने फरमाया जो पहले कौम को जिन चीज़ों से मतलब फ़ायदा हुआ है उन्हीं चीज़ों से इस कौम को भी फ़ायदा होगा, यानी जिस चीज़ से वो ठीक हो गई इस चीज़ से, और वो चीज़ क्या थी, वापस करना रुजू कुरान और हदीस की तरफ और सहाबा की ज़िंदगी असलाफ़ की तरफ। खैरुल करनी सुबल्लज़िना यलूनहुम सुमल्लज़िना खैरुल कुरूनि करनी, सबसे बेहतर वही ज़माना मोहम्मद चोर यार बरहक गुजरुख तब निश दुनिया न्याय सद तौर गसो तस दौरस रहमत जारी सह रहमतुक माहौल गज बे पद बे बचो तेल आज तम निश क्या कुरान हदीस मज तम अहकाम कुन ज़मानस मज कर मोमिनस रहनुमाई, तवे आया ब्रोह वार्निंग दिन ताकि लोग गसन मुब्तला अत मज। यह अमे मूजूब वन कि नसा इलाज इलाज खतर आव वन नम चीज़ गो अम नश बचो बादरू बिला माल पे फरमान, इसलिए रोजो तुम मोहतात हेस करो बचो पान तो हेकू बचित अगर यू तवे आया वार्निंग दिन। वार्निंग कम खतर दिवान आज मतलब बह कर दपान कि वार्निंग कर लग सब मास्क लग सह लागान कहीं है सैनिटाइजर लगे सह कम खतर लागान ताकि गसन गोस ना कि यह मकसद बचने खतर। अब वार्निंग हम आया दिन अम कम खतर आय दिन हम हकीकत रियलिटी मगर यह वन आमुत ताकि करो पन पान बचाव मुझ नश करो तुथ माहौल पैदा कि ये मज नश बचित हेको पन बच्चे हेको बचत पन इंतजाम करो कोशिश करो दीनी तलीम माहौल करो पैदा तमाम माहौल सही माहौल करो पैदा सन साहबो कर बुजुर्गान दीन अवलिया किराम कोर्मुत यम के जरिए तमो पन पान बचो तम बने खुदा सद दोस्त तमन रो दुनिया मज इज्जत तो आखिरस मज इंशाल्लाह इज्जत। अल्लाह ताला है नसीज़ वत वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।